Hi guys, welcome back to my channel. Hope you all are fine and doing good. So here's my today's to-do list. I'll be doing mechanical properties of solid ka one shot, then I'll be doing product table one shot, and then I will be doing neural control and coordination ka revision plus question practice. And सबका question practice memorization and everything. And so yeah, now let us begin with our today's vlog. So today is the day one of our 10 days challenge, and it's gonna be my full day routine from morning to night routine. I used to wake up these days around 11 a.m. kind of, like I used to slept around 4 or 5, 4, 5:30 something, 4:35 sleep, and then I quickly have my breakfast and just sat on my study table and just get started with things. So you are watching two meets on my, one is on my laptop and one is on the tablet. So this is a study with me session which is held from the PCP Point mentorship. So if you are my old subscriber, you might know that I had enrolled in PCP Point mentorship. So यहाँ पे स्टडी विद मी सेशन पे सारे PCP Point enrolled juniors साथ में पढ़ रहे होते हैं. So as I am also an enrolled junior, I also used to go there every single day. Guys, in this video I will be telling you guys how I am revising my biology. Easy हो जाए अगर तुम्हें कोई डे बाय डे प्लान करके दे दे कि तुम्हें डेली ये वाला चैप्टर आज पढ़ना है, कल ये वाला चैप्टर पढ़ना है, लाइक दैट. एंड डेली बेसिस पे उस चैप्टर के रिवीजन के साथ तुम्हें एक टेस्ट भी मिल जाए उस चैप्टर का. बिकॉज बायोलॉजी इज़ ऑल अबाउट रिवाइजिंग एवरी डे. तुम एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, तुम सेकंड टाइम फिर उस चैप्टर पे जाते हो, फिर से तुम्हें लगता है मैं ये चीज़ भूल रही हूँ, मैं वो चीज़ भूल रही हूँ. तो तुम जितना ज़्यादा टाइम बायोलॉजी रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा तुम ग्रास्प करोगे, उतना ज़्यादा पकड़ बनेगी बायोलॉजी पे. So, if I tell you about my syllabus update and a revision strategy, kind of, so basically, my syllabus for chemistry and biology is completed. My physics is halfway completed from detailed lectures, and rest halfway I am covering with one shot of IELTS. If I tell you about my revision strategy basically for biology itself only, because my biology is completed already in December around, and I have almost revised my biology for once. For like जैसे जैसे टेस्ट में chapters आते जा रहे थे, I was revising my chapters, and now I'm revising it from the second time through this chapter wise test series from the PCB Point mentorship. So here's the schedule of this test series. It is starting from 27th of January, and it's like a 1 month test series in which you will be able to cover all your chapters. It's like one day one chapter. You have simply every day morning you wake up, you have a target, just revise that chapter, cover that chapter, and just give the test. This is how you will be able to revise complete biology in just 1 month. If you haven't completed your biology yet, here is kind of like a deadline for you to cover your syllabus, and simply like biology will be done and dusted for you if you follow this test series. And the best part is that it is at just rupees 49. If you use the link given in the description box, you will get a promo code and you will just able to get it at just rupees 49. So just go and grab this deal. We have just 2 days to go. The test series is starting from 27th. I will be following this test series. You can also follow this test series. So just go and grab this deal. And yeah, यहाँ पे मेरी हो गई 3 hours की पढ़ाई, एंड जस्ट आई गॉट डन विद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड का वन शॉट. साथ साथ में शॉर्ट नोट भी बनाने था पर वो हो नहीं पाया. एंड हियर आई एम अनबॉक्सिंग पैकेट्स विच आई रिसेंटली रिसीव फ्रॉम स्कूबू. मैं पढ़ाई करने बैठी रही थी कि एकदम से मुझे कॉल आता कि मेरा ऑर्डर आ गया है. सो आई डिसाइडेड टू क्विकली अनबॉक्स इट एंड देन कंटिन्यू माई स्टडीज़. Don't know about Scoobu. Scoobu is an online stationery brand. It has like stationery sets, pens, writing instruments, art and craft, office supplies. It brings the most recognized stationery from all around the world together in one place. And basically, Scoobu is having the Republic Day sale. So it starts from 24th of January till 2nd of February. Here you can enjoy up to 76% off all over the site. Best part is that Scoobu is organizing a giveaway. Giveaway will be for 5 lucky winners. So to be on the list, you guys can simply participate in the challenge. Firstly, you have to subscribe to Scoobu's YouTube channel, and secondly, watch, like and comment one of your favorite stationery item on their latest 3 videos using the hashtag Republic Day with Scoobu. 5 lucky winner will be announced on 4th of February, and all of these cute stationery item what I have received, you will also can receive all of them. So just go and participate in the giveaway. So after completing my physics, I took a break, unboxed the stationery items, and then now I'm starting with chemistry. Chemistry mein in today's target I'm having periodic tables. So I already have my detailed notes, my short notes, printed notes, everything. I just have to revise it from this one shot of Mohit Dadi's search. So let us begin. Today was the day one of our 10 days study challenge, and 10 days study challenge का day one होने की वजह से I
kind of very much excited, and I wrote my to-do list. It's like I put a lot of tasks in my to-do, and I couldn't able to complete all of them. So that is what I've updated in the day two, that I couldn't able to complete the whole to-do. So I will be continuing with the same to-do, because this thing I realized with the time, that you must not add so many targets in your to-do. And out of curiosity, out of excitement, I write whatever I feel like. I wrote the lectures, notes, their question practice, a short test as well. So basically time is very less and I am quite anxious. जैसे कि ना दिल से एक डर सा लग रहा है कि मेरी चीज़ें अभी सॉर्टेड नहीं हुई, जैसे चीज़ें 100% नहीं हुई खुद से। तो आई एम ट्राइंग कि जल्दी से जल्दी मैं सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लूँ, उन पे टेस्ट भी दे दूँ, उनका सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कंप्लीट कर लूँ, सारा रिविजन भी कर लूँ। सो इसीलिए बस लगता है टू डू में ये भी ऐड कर लो, वो भी ऐड कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। बस लगता है दिन में कैसे मैं 24 घंटे पढ़ाई कर लूँ। तो उन्हीं सारी चीज़ों में मैं बहुत सारी चीज़ें आजकल अपने टू डू में डाल लेती हूँ, एंड फिर आई फेल्ड। सो डे वन से मुझे ये लेसन मिल गया था कि मरियम, यू मस्ट नॉट ऐड सो मेनी थिंग्स इन योर टू डू। इट जस्ट दैट यू आर वॉचिंग लेक्चर्स एज वेल, यू आर रिवाइजिंग एज वेल, यू आर डूइंग क्वेश्चन प्रैक्टिस एज वेल। So you must try to as much as you can and just continue with the flow. आज जितना कंप्लीट हो पाए उतना आज कंप्लीट करो, उसके बाद नेक्स्ट डे कंप्लीट कर लो। तो यहाँ पे डन विद द लेक्चर गाइस, एंड ऑलमोस्ट 3 hours लग गए आई गेस। 4 5 6 5 6 7, हाँ ऑलमोस्ट 3.5 hours लग गए मुझे ये 7 hours का लेक्चर कंप्लीट करने में। मेरे पास नोट्स थे स्टिल, सर ने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताए जो मेरे नोट्स में भी नहीं थे। सो मतलब डिटेल लेक्चर में भी सर ने, जैसे कि मैं अपने डिटेल नोट्स पे उठा रही हूँ ना, जैसे कि हेयर डिटेल नोट्स में यहाँ पे सर ने साइज़ बताया। साइज़ सर ने ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया सर ने। तो SPDF बताया, SPD बताया, फिर D 5D सीरीज़ के बाद सर ने जुगाड़ फॉर लैंथेनॉइड बताया था। उसके बाद एक्टिनॉइड नहीं बताया था, पर क्रैश कोर्स में उम्मीद बात वाले लेक्चर में बताया है। तो काइंड ऑफ ये लेक्चर्स इतने डिटेल होते हैं कि कितने एक भी बार नहीं भी पढ़ रखा है ना, तो वो भी पढ़ेगा तो उसे भी समझ में आएगा। बस ये हो जाता है कि अगर तुमने पहले अपने स्कूल टाइम में कभी पढ़ रखा है तो तुम्हें सब चीज़ समझ में आती है। अब तुम एकदम ज़ीरो से हो तो बहुत जो छोटी चीज़ होती है शायद वो तुम्हें ना समझ में, पर अगर तुमने बेसिक्स क्लियर कर रखे हैं तो तुम्हें ज़रूर समझ आ रहा होता है सब। सो मुझे लग रहा है मुझे एक बार इसके फिर से शॉर्ट नोट्स लेने चाहिए, पर अभी हमें लेट्स चेक आउट इट। We are done with mechanical properties का one shot. We are done with periodic table one shot. Now move on to periodic. स्कूबो वाले गिव अवे में ज़रूर पार्टिसिपेट करना, एंड होपफुली मेरा कोई ना कोई सब्सक्राइबर गिव अवे विनर बन जाए। एंड बाय द वे जो चैलेंज का गिव अवे है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, एंड तुम में से बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें कह रहे थे। तो बेसिकली एक स्टेशनरी का गिव अवे का कह रहे थे, तो काइंड ऑफ ये स्टेशनरी गिव अवे हो गया है। मतलब तुम लोग पार्टिसिपेट कर लेना एंड लेट्स सी कौन विनर बनता है कौन नहीं। एंड बाय द वे मैं क्या गिव अवे कर रही हूँ, तो जैसे कि ये तुम पोस्टर्स देख रहे हो मेरे स्टडी टेबल के आसपास, दीज आर सुपर डी एस्थेटिक। स्टडी टेबल पे कुछ भी ना हो तो बस इन्हें लगा लो, काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक लगता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो मुझे बहुत सारे लोग प्रेज़ भी करते रहते हो, काश हमारे पास भी ऐसा हो ऐसा हो। तो आई डिसाइडेड कि जो भी बनेगा विनर मैं उन्हें ये स्टिकर सेंड कर रही होंगी। एंड अगर कोई गर्ल होगी तो हम उससे ये ग्रीन वाला स्टिकर सेंड कर सकते हैं, कोई बॉय होगा तो उन्हें ये सारे ब्लैक वाले स्टिकर्स। तो मतलब जो भी गिव अवे विनर होगा हम उनसे पर्सनली डिस्कस करके उन्हें ये चीज़ डिस्पैच कराएंगे। आई विल बी सेंडिंग यू गाइज। सो आई होप तुम लोग को ये चीज़ पसंद आ रही हो, तुम्हें भी क्यूट लगेगा। एंड या तो मैंने यही डिसाइड किया है कि गिव अवे विनर को आई विल बी सेंडिंग दीज पोस्टर्स। नॉट माइन, ये मत सोचना इन्हें उखाड़ के मैं भेज रही होंगी, ऑब्वियसली नॉट। आई ऑर्डर वन फॉर यू एट योर एड्रेस। सो पढ़ाई करते रहो। एंड मैंने हमेशा ये चैलेंजेस में देखा है, हमेशा डे वन पे बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं एंड डे टू डे थ्री तक आते आते बहुत कम हो जाते हैं। तो देख के थोड़ा सा वो लगता है कि यार दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, वाई एम आई डूइंग दिस। फिर लगता है जो लोग कर रहे होते हैं दे आर डूइंग गुड, दे मरियम यू मस्ट डू फॉर देम। सो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तुम लोग भी पढ़ाई करते रहो। चैलेंज में नहीं भी पार्टिसिपेट कर रहे हो पर पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। लास्ट के 100 days बचे हैं एंड ये बहुत क्रूशियल है हम सब के लिए। यहाँ पे मेरा अपना क्या बोलते हैं न्यूरल का वन शॉट का रिवीजन कंप्लीट हो गया था। मुझे जो चीज़ समझ में आई थी मैं बस वहीं पे वन शॉट लगाई थी, बाकी खुद से लिख लिख के याद कर रही थी। बायो में लिख लिख के याद करना
चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने अभ्यास एसेंशियल ऐप से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर दिए थे। एंड ओएमआर की प्रैक्टिस भी लास्ट के कुछ दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तो पीसीबी पॉइंट मेंटरशिप में एनरोल्ड हैं, तो हमें ये ओएमआर बुक वहीं से मिली है। तो जस्ट कीप दीज थिंग्स इन माइंड। लास्ट के 100 डेज़ में कुछ भी गलत ना हो तुम्हारे साथ। अपना तबीयत का ख्याल रखो। ये छोटी छोटी चीज़ें की जैसे ओएमआर प्रैक्टिस ज़रूर डालो अपनी हैबिट में। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। एंड रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेज अपने डेली टाइम के साथ अपना रिविजन ज़रूर मैनेज करो। अगर सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो लेक्चर्स के साथ रिविजन ज़रूर डालो। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो और पढ़ते रहो, और लास्ट 100 डेज़ में एकदम अपना बेस्ट दे के लेट्स जस्ट क्रैक इट। एंड लेट्स जस्ट गेट आउट ऑफ दिस लूप ऑफ गेटिंग टेकिंग ड्रॉप्स। यहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट 12 आवर्स की पढ़ाई हो गई थी। मैंने सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। इसके बाद रैप अप कर दिया आज का व्लॉग। दैट्स इट फॉर द डे। मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।